Hello students, welcome to my channel Core Grammar and English Education. So in this particular video I am going to explain you the poem Whose Place It Is Anyway. Okay, so this particular channel provides help and guidance to all ICSE, ISC and CBSE students. Now ICSE schools follow various means all the junior classes 6, 7, 8 follow different kind of literature books. Okay, so your stories and poems may vary. I would like to cover as many as stories and poems possible, okay, in my videos. So today in this video I am going to start with the poem Whose Place It Is Anyway by Martin Kisco. Okay, so let us see what is there in this particular poem. And if you are new to the channel, do subscribe the channel and hit the bell icon so that you get the regular notifications and you never miss out all the study materials that I am uploading every day in my channel. So let's start. Whose place it is anyway? So let us first know what is the main concept of the poem and who is the author. Let us know something about him also. Martin Kisco is a poet, composer and screenwriter. He has composed over 200 scores of films and television and released 8 albums. Okay, so Martin Kisco is basically a poet, composer, screenwriter. Okay, so he is also known as UK's green poet. तो mainly Martin Kisco का जितना भी writing होता है वो तुम्हारा environment related रहता है. मतलब एनवायरनमेंट में ह्यूमन बींग्स आजकल बहुत पोल्यूट कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के एक्टिविटीज़ की वजह से. तो एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक हम लोगों का डर्टी हो जा रहा है. ओके, एनवायरनमेंट इज गेटिंग पोल्यूटेड, वी आर फेसिंग सो मेनी ट्रबल. ओके, नाउअडेज Whose Place It Is Anyway is from his collection of poems, Green Poems for a Blue Planet. Okay, so Blue Planet is our Earth and this particular poem comes from his Green Poem collection. Okay. It is thought-provoking poem the poet writes about animals and trees under the threat of extinction due to human activities. तो देखो human activities मतलब कि हम लोग air pollute कर रहे हैं, water pollute कर रहे हैं, मतलब human से जो pollution हो सकता है सब pollution कर रहे हैं. Okay, we are bothered about ourselves, we are not concerned about animals, we are not concerned about your plants. Okay, हम लोग plants, animals, surroundings ये सब के बारे में बाद में सोचते हैं, अपने बारे में पहले सोचते हैं. Okay, so due to this selfish nature of human beings, the environment is getting polluted and we can get the glimpse of that thing every day. Okay, आजकल हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं ये pollution के वजह से कितना trouble है. Okay, human activities की वजह से कितना trouble है ये चीज़ तो हम सभी को पता है. तो मार्टिन किस्को एक्चुअली ये पोएम में हम लोग को एक हिंट देना चाहता है कि हम लोग के एक्टिविटीज़ के वजह से ह्यूमन बींग्स के एक्टिविटीज़ के वजह से what the means your animal world, what the plant world is suffering. ठीक है, मतलब plants और animals का क्या problem हो रहा है हम लोग के वजह से, ये चीज़ मार्टिन किस्को हम लोग को ये पोएम में बताना चाहते हैं. Okay, so let us begin with the poem. The golden mole is threatened by the workings of a mine. The pine marten and the polecat lived on borrowed time. Hippos cannot hide from illegal poachers' gun. Do the cheetahs of Botswana watch their last setting suns? Okay, so first let us understand what the poet wants to say in the first 4 lines. तो देखो first line में poet बोलता है The golden mole is threatened by the working of a mine. ठीक है, ये mole क्या है? mole मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं छुचुंदर और बंगाली में उसको बोलते हैं छुचो. ओके, समवट इट लुक्स लाइक अ रैट, बिगर देन अ रैट. ओके, तो ये जो मोल रहते हैं गोल्डन मोल ये मिट्टी के नीचे रहते हैं बरोज में. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन लोगों को कैसे ट्रबल करता है? ह्यूमन बींग्स माइनिंग का काम करते हैं. ठीक है, ह्यूमन बींग्स को माइनिंग करना ज़रूरी है, हम लोगों को रिसोर्सेज मिनरल्स चाहिए, लेकिन कभी कभी वो माइनिंग कुछ ज़्यादा ही हो जाता है. ठीक है, लिमिट से ज़्यादा. तो ये जब माइनिंग होता है ये ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से मोल लोगों का जो घर है वो ख़राब हो जाता है. ओके,
और ये मोल लोगों का जो हैबिटेट है इसको हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। तो पोएट वही चीज़ यहाँ पर फर्स्ट लाइन में इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड लाइन में क्या है देखो, द पाइन मार्टिन एंड द पोलकैट live on borrowed time. Okay, now what is a pine marten? Pine marten is actually a cat. Polecat is obviously a cat, different type of cat. Okay, cats. तो ये जो different type of cats है ये भी अभी बहुत प्रॉब्लम में है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से। इन लोगों का सराउंडिंग ख़राब हो रहा है, ठीक है। इन लोगों का जो फेवरेबल क्लाइमेट इन लोगों को चाहिए, फेवरेबल सिचुएशंस इन लोगों को चाहिए, ये भी इन लोगों को मिल नहीं रहा है, ठीक है, जो कि नॉर्थ यूरोप में मिलता है ये सब कैट्स। हिपोस कैनॉट हाइड फ्रॉम द इलीगल पोचर्स गन्स, ठीक है। देखो पोचिंग और हंटिंग ये दोनों चीज़ें मना है, बट स्टिल जो तुम्हारा पोचर्स लोग हैं, जिन लोग तुम्हारे हंटर्स लोग हैं, इन लोग कैसे भी करके इन लोगों का हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हिपोज आर ऑल्सो नॉट स्पेयर्ड फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज़। हिपोज लोगों का भी लाइफ जा रहा है, क्यों? सेल्फिश ह्यूमन बीइंग्स हिपोज का बॉडी का कोई भी पार्ट्स मार्केट में सेल करने के लिए दे आर किलिंग देम, ओके, एंड दैट्स वेरी रॉन्ग। सो ऑल द रॉन्ग थिंग्स दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, दोज थिंग्स द पोएट वांट्स टू हाईलाइट इन दिस पर्टिकुलर पोएम। नाउ सी, do the cheetahs of Botswana watch their last setting suns? तो Botswana is name of a place, okay. तो cheetahs भी क्या safe है? उन लोग भी क्या survive कर पाएंगे ये human activities के वजह से? As Arctic ice dissolves and polar bears decline. तो देखो global warming के वजह से तुम लोगों को पता ही है कि हम लोगों का यहाँ पर जो आर्कटिक अंटार्कटिक ये सब जो जगह हैं, ice capped areas, okay, ice capped mountains, तो ये सब माउंटेन्स धीरे धीरे पिघल रहा है, ओके। और पोलर बियर्स का लाइफ भी थ्रेट में है, ओके। इफ द मेल्टिंग ऑफ आइस गोज ऑन देन मे बी दीज एनिमल्स विल बी नो मोर, ओके। तो ये चीज़ के बारे में भी पोएट हाईलाइट कर रहे हैं। कैन द वुल्व्स ऑफ इथोपिया ट्रस्ट ह्यूमन काइंड? तो बोलते हैं वुल्व्स भी क्या जो इथोपिया में रहता है, यहाँ पर देखो अलग अलग रीजन्स के एनिमल्स को पकड़े हैं। You can say these animals are endangered animals, okay, and if we don't protect them they may be extinct, okay, within a couple of years, okay। तो ये practically सब endangered animals के बारे में बताया हुआ है, जो endangered animals human being activities के वजह से अपना life खो रहे हैं, okay। तो poet बोलता है क्या wolves लोग भी safe है? Will the white-tipped shark and the angel shark avoid the fishing trawl, okay। फिशिंग ट्रॉल मतलब फिशिंग नेट। तो बोलता है समुद्र के अंदर जो शार्क्स है, शार्क मछली, वाइट टिप एक टाइप का शार्क है और एंजल शार्क एक टाइप का शार्क है सॉरी। तो विल दे बी एबल टू सर्वाइव? क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो कुछ भी छोड़ते नहीं है, शार्क को भी उठा लेंगे, ओके। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में शार्क का भी तुम्हारा जो फ्लैश है, फ्लैश बोलो मीट बोलो, ओके, दोज काइंड ऑफ फिश ऑल्सो मैनी पीपल हैव, ओके। और इतना ज़्यादा इन लोगों का फिशिंग भी इतना ज़्यादा भी हो गया है, तो फिश का भी लाइफ बहुत ज़्यादा थ्रेट है, ओके, थ्रेट में है। हाउ सून विल द एम्पिंगो ट्री टेक्स इट्स फाइनल फॉल? ओके, अब एम्पिंगो एक्चुअली में क्या है? एम्पिंगो वेरी डेंस एंड ड्यूरेबल ट्री, ठीक है। तो एम्पिंगो जो है ये बहुत ही एक डेंस ट्री है और बहुत ही ड्यूरेबल ट्री है, ठीक है, दैट ग्रोज इन द वुडलैंड्स ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो एम्पिंगो ट्री एक्चुअली में वुडलैंड में ग्रो होता है, ठीक है, ग्रोज इन द वुडलैंड्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में ग्रो होता है, सॉरी, वुडलैंड्स मीन्स फॉरेस्ट में, ठीक है। तो ये एम्पिंगो ट्री भी धीरे धीरे कम हो रहा है, ह्यूमन बींग्स उसका डिफॉरेस्टेशन के वजह से ह्यूमन बींग्स उसको काट दे रहे हैं, ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, सॉरी, डिफॉरेस्टेशन की वजह से नहीं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इसलिए ये ट्री का भी नंबर ऑफ ट्रीज धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ट्रीज है जिसका नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है, द पोएट वांट्स टू हाईलाइट दो स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ plants and animals which are getting less in number due to the human activities, okay, and the poet wants to highlight that these human activities are very wrong, and if this goes on then our ecological balance will be hampered, okay, and final victims will be we only, the human beings. The manta ray is troubled by pollution of the waters.
while cats of the Andes scaper from a slaughter. Will the jaguar outrun the hunter's cold pursuit? Can we save our ponds from the great crested newt? Okay, what is newt? Newt is a lizard-like creature. Okay, तो बोल रहे हैं जो manta ray, that is also a creature. Okay, वाटर में ही रहता है. तो बोल रहे हैं मांटा रे क्या बच पाएगा? मांटा रे का सर्वाइवल करना क्या पॉसिबल होगा ये सिचुएशन में? While the cats of Andes scaper from a slaughter. Okay, तो बोले कैट्स भी जो है जो तुम्हारे एंडिस में रहते हैं उन लोगों को काट दिया जाता है, उन लोगों को किल किया जाता है. ठीक है, तो क्या कैट्स भी सर्वाइव कर पाएंगे? जैगुअर इज अ काइंड ऑफ टाइगर. ओके, तो क्या ये टाइगर भी सर्वाइव कर पाएगा ह्यूमंस के वजह से? कैन वी सेव आवर पॉन्ड्स फ्रॉम द ग्रेट क्रेस्टेड न्यूट? बोला पॉन्ड हम लोग इतना कचरा करते हैं. पॉन्ड में भी बहुत सारा छोटा छोटा एम्फीबियंस रहते हैं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स बोलो, ठीक है, छोटे छोटे क्रिएचर्स रहते हैं. तो पॉन्ड में भी हम लोग इतना पोल्यूट कर रहे हैं. तो विल दोज स्मॉल न्यूट, ओके, मीन्स लिजर्ड काइंड ऑफ थिंग्स, वो सब क्रिएचर्स सर्वाइव कर पाएंगे अगर ह्यूमन बींग्स ऐसे ही अपना एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करे? तो will snakes find their lairs as habitat turn to road? ओके, तो बोला स्नेक्स का जहाँ घर होता था उसको हटा के अभी हम लोग हर जगह में रोड बना दे रहे हैं. ठीक है, तो स्नेक्स कहाँ रहेंगे? क्या स्नेक्स को अपना घर मिल पाएगा रहने के लिए? डज अ पार्किंग लॉट कम फर्स्ट और द प्यूर्टेरिकन टोड? ठीक है, प्यूर्टेरिकन इज अ टाइप ऑफ टोड. टोड माने क्या है? फ्रॉग का एक वैरायटी है. ठीक है, तो बोल रहे देखो अभी हर जगह तोड़ तोड़ के हम लोग पार्किंग लॉट बना दे रहे हैं, मॉल बना दे रहे हैं, शॉपिंग मॉल बना दे रहे हैं. तो क्वेश्चन यही है ह्यूमन बींग्स के ऊपर कि तुम लोगों का शॉपिंग मॉल या पार्किंग लॉट या रोड ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एनिमल्स का रहने के लिए, उन लोगों का सर्वाइवल के लिए, उन लोगों का हैबिटेट? ओके, विल कोआलाज इन द हॉलोज सर्वाइव द रथलेस लॉगिंग? कोआला क्या है? बियर टाइप का है. तो इन लोग क्या करते हैं? इन लोग ट्री के अंदर रहते हैं, ट्री को हक करके रहते हैं. तो बोले हम लोग जो इतना लॉगिंग कर रहे हैं, लॉगिंग मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, तो बोले हम लोग जो इतना लॉगिंग कर रहे हैं, इतना ट्रीज कट डाउन कर दे रहे हैं, तो क्या ये ट्री के कटिंग डाउन को कोआलाज लोग बियर कर पाएंगे? Will they be able to survive in such a situation when human beings are not thinking about them and just cutting down the trees for their own profit? Shall we bother to find out or is that just too much slogging? ठीक है, तो बोला क्या हम लोग को ये सब चीज़ को लेके सोचना चाहिए या हम लोग सिर्फ फालतू का ही बातें कर रहे हैं और इतना एफर्ट लगा रहे हैं कि एनिमल्स बचा लो, इतना एनिमल्स बचा लो. देखो सबको ही बोलता है एनिमल्स बचा लो, ट्री बचा लो. जब बात खुद पे आता है तो हार्डली बहुत जन कम है कि एनिमल्स को लेके सोचेंगे या ट्रीज को लेके सोचेंगे. सब अपना पहले अपने बारे में सोचते हैं. तो बोलते हैं क्या ये एक फालतू का एफर्ट है या सच में हम लोगों को सोचना चाहिए? ठीक है, सो दैट थिंग द पोएट आस्क्स. Why don't we remember those whom we share the earth? तो देखो अर्थ तो सभी के साथ शेयर्ड है, एनिमल्स के साथ भी है, प्लांट्स के साथ भी है. ठीक है, तो सभी के बारे में सोचना चाहिए. तुम अगर रहते हो घर में, बगल में कुछ मैंने स्ट्रीट में अगर स्ट्रीट डॉग्स है, स्ट्रे कैट्स है, तो हम लोग को उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए. हम लोग बहुत जन सोचते हैं रास्ता का डॉग है, इसको हटाओ, ठीक है, निकालो इसको. देखो हो सकता है कि उन लोग ट्रबल क्रिएट करते हैं, हो सकता है कि उन लोग डर्टी करते हैं जगह को, कैट्स लोग घूमते रहते हैं घर के अंदर, तो हो सकता है हेल्थ एंड हाइजीन दैट्स अ सेपरेट इशू. बट इफ वी आर हियर ऑन द अर्थ, द एनिमल्स एंड प्लांट्स डू हैव द राइट्स. ओके, दे ऑल्सो हैव द राइट्स टू स्टे ओवर हियर. तो हम लोग को उसको ठीक है जितना भी हो सके खाना प्रोवाइड करना, अगर हो सके तो शेल्टर प्रोवाइड करना. एज अ ह्यूमन बीइंग we should also have those means common sense. okay, हम लोगों को भी उसको करना चाहिए. अगर हम लोग नहीं करते हैं तो उसका रिटर्न भी आएगा हम लोगों के पास. बिकॉज अर्थ जो है, अर्थ में ह्यूमन बींग्स का भी जैसा रहना ज़रूरी है, एनिमल्स प्लांट्स का भी रहना ज़रूरी है. उसमें कोई भी चीज़ अगर नेग्लेक्टेड हो जाता है, एक दिन में समझ नहीं आएगा, हो सकता है 10 साल में समझ ना आए, बट इन द लॉन्ग रन डेफिनेटली द नेचर इज गोइंग टू पे बैक to us. okay, and we are going to suffer. okay, and that's for sure because whatever we do now उसका रिटर्न हम लोगों को आने वाला है. ऐसा तो हम लोग बोलते हैं ना,
कर्म का फल हम लोग को मिलेगा, सो एंड सो हम लोग बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग हम लोग को समझाते हैं। एक्चुअली एवरीथिंग हैज़ अ साइंस बिहाइंड इट। तो कर्म का फल का मतलब क्या है? तुम अगर कुछ भी प्लांट्स नहीं देखोगे, एनिमल्स को देखोगे नहीं, तो ये एनिमल्स अगर एक्सटिंक्ट हो जाता है तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और वो कैसे हम लोग को हार्म करेगा, जब हार्म करेगा वी विल रियलाइज दैट थिंग। सो द पोएट इज सेइंग दैट वो होने से पहले ह्यूमन बींग्स का कम से कम अक्ल आ जाना चाहिए। दे शुड बी केयरफुल दैट इफ वी आर सर्वाइविंग वी शुड ऑल्सो गिव the opportunity to all those plants and animals to survive in a proper environment. Okay, so see, we can't let our friends sorry, I missed one line. And why won't we honor and value their worth? We can't let our best friends simply vanish without trace. So let's work together and restore the rightful place. ठीक है, तो ये जो rightful place है, ये जो जगह है, इसको restore करना है। वी हैव टू कंसिडर एवरी एनिमल एज अ फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ जाके चिपक के बैठ जाओ, ऐसा नहीं बोल रहे, बट हम लोग को ऐसा भी कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उसका हार्म हो जाए। ओके, हम लोग को उसको हार्म नहीं करना है। वी शुड नॉट मेक एन अटेम्प्ट टू हार्म देम, या फिर उन लोगों का जो हैबिटेट है उन लोगों को तोड़ ताड़ के भगा देना, ये भी करना सही नहीं है। ठीक है, जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, उसको अपने सराउंडिंग्स में अगर वो रहता है, अगर वो हार्मलेस है, दो सो लेट इट बी ओवर देयर। मैं तुम लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ओके, मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन योर डॉग्स सिटिंग विद द पपीज, और कैट्स, घर में बिल्ली है, छोटे छोटे किटन्स दिया है, ठीक है बर्थ है उन लोगों का घर में। तो हम लोग जनरल पब्लिक क्या करते हैं, देखना 100 में से मैंने 90 पीपल यू कैन से, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तुम देखोगे, अरे अरे इन लोगों को बाहर निकालो, कचरा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ओके, जितना ना उन लोग कचरा करेगा उससे ज़्यादा हम लोग चिल्ला देते हैं, एंड दैट्स द फैक्ट। ओके, हम लोग क्या करते हैं, उसको इधर कोई लेके जाके डस्टबिन में डंप कर देता है, या मैंने बहुत जगह देखा है। ओके, यू ऑल्सो माइट हैव सीन, बट एक्चुअली दैट्स नॉट करेक्ट, यू नो। अब तुम बोलोगे सर क्या हो जाएगा अगर मैं कर दूंगा, तो अब क्या होगा, मैंने बोला ना कि यू विल नॉट बी एबल टू नो व्हाट इज़ द रिजल्ट नाउ, बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो सोचो कैट है, जो है, अगर छोटा सा एग्जांपल, ये कैट चूहा खाता है, ठीक है, चूहा ही पकड़ लेते हैं फिलहाल। तो अगर सोचो कैट्स गायब हो जाते हैं, इतना सब जगह से कैट अगर सोचो एक्सटिंक्ट हो गया फॉर एग्जांपल, अगर ना हो ऐसा, गॉड ना करे, तो कितना रैट्स यहाँ बढ़ जाएगा, तुमको आइडिया है? कितना छोटा छोटा क्रिएचर्स बढ़ जाएगा, मतलब हम लोग रह नहीं पाएंगे यहाँ पर। जो तुम लोग सभी ने पढ़ा है कि फूड चेन है, फूड वेब है, ओके, एवरीथिंग यू हैव स्टडीड, सो दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड। तो कैट्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने घर में रख लो, घर के अंदर सुला दो, ऐसा नहीं है, बट इफ़ देर आर कैट्स, अगर बाहर में रहते हैं तुम्हारे घर के सामने, अगर डॉग्स है बाहर में रहते हैं, so we should not harm them. Okay, they are also not going to harm us until and unless we harm them. Okay, because they also have got some sense in them. तो यहाँ पर पोएट जो है, पोएट यही सभी अलग अलग एनिमल्स के बारे में बताया है। If you need more information regarding those animals, you can find out where they stay and how they look and all. But the main concept of the poem is that various animals are there and plants are also there who are in danger. ड्यू टू whom? ड्यू टू अस, ड्यू टू ह्यूमन बींग्स। सो हम लोगों को सोचना चाहिए उन लोगों के बारे में, एंड वी शुड नॉट मेक एनी अटेम्प्ट, सो दैट मीन्स एनी अटेम्प्ट टू हार्म देम। अगर हार्म करते हैं देन someday or the other we are also going to get harmed. Okay, I hope all of you understood the poem. So that's all for today in this particular video.